Okay, so guys, this is 2010 question of section 1.3 and the topic is logic gates. It is saying an alarm X gives a signal that is X equals to 1 when a car fuel injection system gives certain fault condition. See, car system के अंदर भी जो fault condition की diagnosis है वो with the help of logic gates करवाई जा सकती है. The inputs are P, R and T. These are three inputs. And you guys remember we have seen this type of question previously. And input P is 0 when the pressure is less than 5 bar. Pressure P is 1 when the pressure is greater than equal to 5 bar. R is equals to 0 when revolutions, or it could be REVS, जो भी है, is greater than, yes, revolutions हैं greater than 8000 RPM. And R is equals to 1 when REVS यानी revolutions is less than equals to 8000 RPM. ठीक है. And then क्या कह रहे हैं? T is equals to 0 when temperature is greater than 120 degrees centigrade, and T is equals to 1 when temperature is less than equal to 120 degree centigrade. So these are the values, these are the condition when the values are 0 and 1 of P, R and T. Now what we are supposed to see specifically, this condition, this is a point through which we are supposed to make a logical statement and logical diagram. Logic circuit कहते हैं. Pressure, either the alarm returns a value of 1. Alarm 1 कब करेगा? जब either pressure is less than 5 bar and revolution greater than 8000 RPM. Pressure is equals to is less than 5 bar and revolution greater than 8000 RPM. अब अगर आप इसको देखें तो P less than 5 bar से मतलब ये है कि P is equals to 0 and revs is equal and R is equals to 0. तो अगर आप ये लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं मैं अपनी आवाज को थोड़ा बेटर करता हूँ, थोड़ा ज्यादा तेज बोलने की कोशिश करता हूँ. आई एम सेइंग इन दिस सिनेरियो P pressure is less than 5 bar, that means P is equals to 0, and REVS is greater than 8000, that means R is equals to 0. तो अगर हम इसको यहाँ पर लिखें P is equals to 0 and R is equals to 0. ठीक है, ये मेरी पहली वो बन गई स्टेटमेंट. इसका मैंने लगा दिया ब्रैकेट, और ब्रैकेट से पहले हम क्या लिखते हैं? x is equals to 1 if x equals to 1 if p is equals to 0 and r is equals to 0. और इधर और की सिचुएशन है तो यहां पर आएगा और के बाद क्या कह रहा है? और के बाद कह रहा है रेवोल्यूशन लेस देन 8000 आरपीएम एंड टेम्परेचर ग्रेटर देन 120. यानी और के बाद कह रहा है कि रेवोल्यूशन लेस देन 8000 का मतलब है कि आर लेस देन 8000 ये है, दैट मींस आर इज इक्वल टू 1 एंड टेम्परेचर ग्रेटर देन 120, दैट मींस टी इज इक्वल टू 0. तो मतलब टी जो है उसकी वैल्यू दूसरी जो है वो क्या है? 0 है, एंड टी इज इक्वल टू 0. आर इज इक्वल टू 1 एंड t is equals to 0. ये जो है ये पूरी कंडीशन आपकी यहाँ पर बन गई. अब इस कंडीशन के अकॉर्डिंगली हमने क्या करना है? हमने जो है वो एक डायग्राम पूरी जो है वो क्रिएट करनी है. अब ये कंडीशन सबको क्लियर हो गई. हमने कंडीशन क्वेश्चन से देख के बना ली. दिस द लॉजिकल स्टेटमेंट. इस लॉजिकल स्टेटमेंट के थ्रू हमने डायग्राम बनानी है और हमने जो है वो ट्रुथ टेबल पूरा प्रोड्यूस करना है. Now what would be the diagram? Diagram के लिए the important points are P, R and T. आपने जो है वो तीन inputs आपने starting में ले लेना है, P, R and T. This is for example for P. This is for R. ठीक है, and this is for T for example. ठीक है. P. This is for R. And this for T. And what I told you before, when there are simple lines
these simple lines are considered as 1, and when the requirement is 0, so we have to make a not gate. ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं x इक्वल्स टू 1 if p is equals to 0. मैं फर्स्ट पॉइंट करने जा रहा हूँ if p is equals to 0. तो p की वैल्यू अगर 0 होगी तो इसका मतलब है p के लिए मुझे एक नॉट गेट लगाना पड़ेगा. यहाँ मैंने एक नॉट गेट ड्रॉ कर लिया. ठीक है, या मैं नॉट गेट ड्रॉ कर लेता हूँ और आगे ये बबल लगाने की कोशिश करता हूँ. दिस इज द नॉट गेट ऑफ p. नाउ whatever the answer I am getting, this from this line is the value of 0. this is p is equals to 0. now r is equals to 0 भी रिक्वायरमेंट है, तो इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक है, दिस इज माई r फॉर एग्जाम्पल. ठीक है, इसकी वैल्यू को 0 करने के लिए मुझे यहाँ पर जो है वो पॉइंट करना होगा. मैं इसको यहाँ पर पॉइंट करता हूँ. पॉइंट करने के बाद अब जो मैं यहाँ से जो आउटपुट वायर ले रहा हूँ, दिस वायर इज r is equals to 0. ठीक है, एंड देन मेरे इन p is equals to 0 और r is equals to 0 के दरमियान क्या हो रहा है, there is an end, एक एंड गेट लग रहा है. और एंड गेट लग रहा है, दैट मीन्स कि मुझे इन दोनों के दरमियान जो है वो एंड गेट लगवाना पड़ेगा. तो मैं यहाँ से एक ज्वाइनिंग लेता हूँ. ठीक है, और इस ज्वाइनिंग के बाद मैं यहाँ से एक ज्वाइनिंग लेता हूँ. ठीक है, इन दोनों को एज एन इनपुट बना के, ठीक है, ये हो गया. और फाइनली आई हैव गॉट दिस. ये दोनों एक दूसरे के साथ ज्वाइन करवाना है, और ज्वाइन करवाना है और इनके बिटवीन है देयर इज एन एंड गेट. तो मैं इनके दरमियान जो है वो एंड गेट ड्रॉ करूंगा. तो ड्रॉ एन एंड गेट. दिस इज द ड्राइंग ऑफ एन एंड गेट. ठीक है, ये एंड गेट आ गया. एंड फाइनली आई हैव गॉट दिस वैल्यू. This is, for example, the answer of this whole first condition. This is the whole first condition, and this is the final value of this whole condition. हम आ जाते हैं राइट हैंड साइड वाली कंडीशन पे. r is equals to 1. ठीक है, ये r की वैल्यू यहाँ पर 1 है, एंड t is equals to 0. t की वैल्यू हमारे पास 1 है, हमें 0 चाहिए. तो 0 लाने के लिए जो है वो हम फिर से हम जो है वो एक गेट बना लेते हैं. यहाँ से इसके आगे बबल बनाने की कोशिश करते हैं. ठीक है, इसके आगे बबल हो गया. बबल होने के बाद जो आउटपुट आएगा वो 0 होगा. ठीक है, जो आउटपुट आएगा वो 0 होगा. और 0 होने के बाद मुझे अब एक पॉइंट चाहिए यहाँ से. ठीक है, क्योंकि मुझे r की वैल्यू जो है 1 चाहिए. मैं यहाँ से एक वायर लेता हूँ. इस वायर को मैं यहाँ से फिर एक ज्वाइनिंग देता हूँ और मैं बाहर की तरफ ले आता हूँ. ठीक है, अब जब बाहर की तरफ लाता हूँ तो आई कैन मेक एन एंड गेट. मैं एक एंड गेट बना सकता हूँ इनका. ठीक है, मैं एक एंड गेट क्रिएट करता हूँ इन दोनों के दरमियान. एंड फाइनली व्हाट आई एम गेटिंग एन एंड बिटवीन r and t bar, r and t naught. I'm getting an end between r and t naught, and the answer is in this line. ठीक है, and the answer is in this line. Okay हो गया. Now I have got this condition. My first condition is standing here and my second condition is standing here, and what I have in between these two conditions, first condition और second condition के दरमियान मेरे पास क्या है, I have this और. तो मेरा काम कुछ भी नहीं है, मेरा काम सिर्फ और सिर्फ ये है, फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन के दरमियान एक और गेट जो है वो बना लिया जाए. That's it. This is the only requirement of getting the value x. अब हम और गेट बनाएंगे. और गेट इस तरह कर्व फॉर्म में बनता है विद द पॉइंटेड नोज. इज द पॉइंटेड नोज, एंड जो फाइनल मेरे पास जो रिजल्ट आ रहा है, दिस इज नोन एज x. ये मेरा x आ गया. तो किस तरह क्वेश्चन के थ्रू मैंने जो है वो
जो सिनारियो गिवन था, जो कंडीशन गिवन थी, उस कंडीशन के अकॉर्डिंगली वी हैव मेड दी कंप्लीट लॉजिक सर्किट। हियर वी हैव डिफरेंट वैल्यूज, पी नॉट हो रही है और यहाँ पर आ रही है, इसको हम नाम देते हैं फॉर एग्जांपल पी बार, ठीक है, दिस इज पी बार। ये हमारे आर है, इसे हम दे देते हैं आर बार, ठीक है, और दिस इज टी, कि टी से रिजल्ट आ रहा है, तो इसका हम नाम दे देते हैं टी बार, ठीक है, ये हो गया टी बार। अब एक रिजल्ट इस गेट के बाद आ रहा है, इसे हम कह देते हैं ए फॉर एग्जांपल, ठीक है, इसे हम कह देते हैं बी। नाउ अब अगर आप लोग रिजल्ट देखें, ठीक है, अब अगर आप लोग ट्रुथ टेबल इसका बनाना चाहें तो आप इजीली बना सकते हैं, ठीक है। मैं आप लोग के लिए ट्रुथ टेबल डिजाइन करूं यहाँ पर, लेट मी शेयर इट विद यू, ठीक है। फॉर एग्जांपल दिस इज ए, सॉरी पी, इट्स पी आर एंड टी। एक पी बार था जिसे हम नॉट पी कहते हैं, ये पी एक नॉट आर हो गया और एक नॉट टी हो गया, एक ए हमारे पास, एक बी हमारे पास, एंड फाइनली वी हैव एक्स, ठीक है। हम इसको सेलेक्ट करते हैं, 2 4 6 8 वैल्यूज लेते हैं, 8 सेल्स लेते हैं और इसे फिल कर देते हैं। लेट्स इनपुट द वैल्यूज, वैल्यूज हमेशा सेम रहेंगी, वी ऑल नो, राइट मोस्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल 0 1 0 1 0 1 0 1, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते जाएंगे, 00 11 00 11, इसके बाद आगे बढ़ते जाएंगे 4 zeros एंड 4 ones, ठीक है। नाउ व्हाट इज नॉट पी? अब देखो नॉट पी देखने के लिए मुझे डायग्राम देखने की जरूरत नहीं है, ये क्लियर चीख के बता रहा है कि नॉट का मतलब होता है इनवर्स, पी का जो कुछ है वो इनवर्स कर दो। तो पी में थे 4 जीरोस, हमने कर दिए 4 वंस, पी में थे 4 वंस, हमने कर दिए 4 जीरोस। फॉर क्वेश्चन आंसर्स आई विल गिव यू द टाइम, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग। अच्छा, not r, what is not r? For the not r we don't have to check the diagram, we simply have to check what is the value of r, and हम डायरेक्टली इसका नॉट कर देंगे, इन्वर्स कर देंगे। r की वैल्यू है डबल जीरोस, अब आप ये देख लीजिए ये r की वैल्यूज है, 00 11 00 11, हम इसका इन्वर्स कर देंगे 11 00 11 00, एंड व्हाट इज t? t not t is the inverse of this t, t की वैल्यू है 0 1 0 1, हम इसे कर देंगे 1 0 1 0 1 0 1 0, ठीक है। अब मुझे डायग्राम देखने की जरूरत है, नाउ आई विल सी द डायग्राम दैट ए जो है वो मेरा कहाँ से आ रहा है। हम देखते हैं ए जो है वो कहाँ से आ रहा है। फॉर दिस लेट्स चेक द डायग्राम। डायग्राम इज सेइंग दैट ए इज कमिंग फ्रॉम एंड गेट and the inputs are not p and not r, inputs are not p and not r, and between not p and not r, and between not p and not r, बार बार कह रहा हूं इसलिए ताकि याद रह जाए, and between not p and not r। अब हम आ जाते हैं not p and not r को हम हाईलाइट कर देते हैं फॉर द टाइम बीइंग, ताकि जो है वो समझ आए हम इस पर काम कर रहे हैं। और इन दोनों के दरमियान अगर हम एंड करवा दें तो रिजल्ट जो आ रहा है वो हमारा ए है। 1 and 1 आंसर इज 1, 1 and 1 आंसर इज 1, 1 and 0 आंसर इज 0, 1 and 0 आंसर इज 0। अब मुझे इतनी क्लासेस लेने के बाद ये बताने की जरूरत नहीं है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंड। एंड का मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, कहीं पे भी एक वैल्यू 0 आती है आंसर इज 0, 0 and 1 आंसर 0, 0 and 1 आंसर 0, 0 and 0 आंसर इज 0, 0 and 0 आंसर इज 0, ठीक है। ए आ चुका हमारे पास, इसको हम वापस नॉर्मल कर देते हैं एंड देन वापस स्क्रीन की तरफ वापस जाते हैं, डायग्राम की तरफ देखते हैं बी कहां से आया। बी इज कमिंग फ्रॉम एंड गेट एंड द इनपुट आर आर एंड नॉट टी, आर एंड नॉट टी, नॉट टी एंड हो रहा है आर के साथ, नॉट टी एंड हो रहा है आर के साथ। तो हम जाते हैं वापस शीट की तरफ, not t is ending with r, this is my not t, let's highlight it,
एंडिंग विद आर, दिस इज माई आर, ठीक है। इन दोनों के दरमियान जो एंड होगा, मैं हाईलाइट इसलिए कर रहा हूं ताकि आप लोग को अलग से दिखे, वरना ये 1 जीरोस बहुत सारे हैं, किसी दूसरे 1 या 0 को पढ़ लिया तो आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट वाला 0 एंड 1, आंसर इज 0, एंड में मल्टीप्लाई होता है, 0 एंड 0 आंसर इज 0, एंड के अंदर कहीं भी एक जगह 0 आ जाए तो वहां आंसर 0 होता है। 1 एंड 0 0, 0 एंड 1 0, 0 एंड 0 0, 1 एंड 1 1, एंड 1 एंड 0 0, ठीक है। नाउ द फाइनल आंसर, वी हैव एन x, x इज कमिंग फ्रॉम दी, पहले मैं इसको अनहाइलाइट कर दूं, फाइनली आई गॉट द x, x इज कमिंग फ्रॉम a और b, a और b को अगर मैं और करवा दूं तो आई विल गेट द वैल्यू x। और के अंदर क्या होता है, एडिशन होती है, 1 और 0 आंसर 1, 1 और 0 आंसर 1, 0 और 1 आंसर 1, 0 और 0 आंसर 0, 0 और 0 आंसर 0, 0 और 0 आंसर 0, 0 और 1 आंसर 1, एंड 0 और 0 आंसर 0। फाइनली यू हैव गॉट दिस x, और इस x के आपको 4 मार्क मिलेंगे, डबल ट्रिपल 1 ट्रिपल 0 1 0, यू विल गेट द 4 मार्क्स। ये हमारा क्वेश्चन था, कह रहा था ड्रॉ द लॉजिक सर्किट ऑफ द अबव यूनिट सर्किट्स, एंड पार्ट बी के अंदर जो है आपसे डायरेक्टली यहाँ पर पी आर टी की वैल्यू दी हुई थी, एक्स आपसे मांगा था, बीच में एक्स्ट्रा स्पेस नहीं थे, लेकिन अब एक्स्ट्रा स्पेस होते हैं ताकि आप वर्क कर सकें। जिस तरह मैंने काम किया था, नॉट पी निकाला, नॉट आर निकाला, नॉट टी निकाला, ए निकाला और बी निकाला। नए क्वेश्चन अब अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर ये वैल्यूज जो है वो होती हैं, आपको स्पेस दिया हुआ होता है। मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ, नए अब जो पेपर बनते हैं उसके अंदर स्पेस गिवन होता है। ऐसी कोई सा भी रैंडम ईयर उठा लेते हैं, ये देख लें, ये क्वेश्चन आपके सामने, ये देखें, इसमें वर्किंग स्पेस मौजूद है, डी एस और टी है, वर्किंग स्पेस मौजूद है। वर्किंग स्पेस होती है ताकि आप एक्स्ट्रा जो वेरिएबल्स आपने यूज किए आप इसे यहाँ पर उनकी वैल्यूज लिख सकें, एंड देन फाइनली आप एक्स जो है वो गेट कर सकें, ठीक है भाई। अब लेट्स गो फॉर क्वेश्चन आंसर सेशन।